हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल B2M बिगिनर टू मास्टर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन दिस B2M channel I have done class 6 NCERT, class 7 NCERT, class 9 NCERT, and my dear friends, right now I'm going through class 10th NCERT. In my previous lecture, my dear friends, I have completed complete a chapter 4, that is agriculture of class 10. And today, as mineral is heavy, mineral का भी भारी भरकम है, so I have decided to take session into two parts. Okay, so guys, अगर मैं audible visible हूँ, just give me a big thumbs up and let me know guys I am audible and visible. मेरे प्यारे दोस्तों, this chapter 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे हम बहुत ही एनिमेशन के साथ, ऑसम इमेजेस के साथ माय डियर फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं गाइस। सो आपको जबरदस्त AKS आंखों का सुकून दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप मुझे जरूर बताएं। My dear friends, myself Ajit Tiwari, having experienced more than 15 years, and my dear friends, I have mentored more than 10 lakh students, including both online and offline classes. Guys, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks for the long-term retention. And guys, I used to interact a lot. Interaction is the most important part of my program. And the more you interact, the more you learn. Guys, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, then you can follow me on unacademy.com/@Ajit Live. And my dear friends, this is the link of my Telegram channel t.me/Ajit Live. That is Ajit Tiwari Sir @General Studies. इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। My dear friends, so get ready for minerals and energy resources. मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए बिग अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। My dear friends, a big announcement is that on Unacademy's YouTube channel, Let's Crack UPSC CSE. Let's Crack UPSC CSE. On this channel, I am coming with, from 23rd of December 2020, I am coming with a very awesome series regarding Prims 2021. My dear friends, आप इस चैनल पे NCERT सीरीज को आप कंप्लीट करें। आफ्टर क्लास 10th I will complete on this channel class 11th NCERT and class 12th NCERT. My dear friends, अगर आपने अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई हैव डन 30 hours complete GC Leong series. And in this big announcement, my dear friends, I am going to complete OSS One Stop Solution series regarding geography and environment. So far, prelims 2021 and 22 is considered. My dear friends, अनअकैडमी के तीसरा चैनल अनअकैडमी यूपीएससी, अगर आपने अनअकैडमी यूपीएससी को भी सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाई? बिकॉज ऑन दिस चैनल I have started a very awesome series, ecology and environment. And guys, I have taken introduction lecture daily at 8 p.m. live. I am available from 21st December. I have started series. So मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लें। The name of channel I am repeating again is Unacademy UPSC. So guys, number of awesome series, बात यही नहीं रुकेगी मेरे प्यारे दोस्तों। So one stop solution for environment and geography OSS series
for prelims 2021 and 22, also beneficial for those appearing in other examination. So guys, it is on Unacademy's YouTube channel. Let's crack UPSC CSE. गाइस एक बिग अनाउंसमेंट है, आपके लिए ऑफर है. ऑफर इज रिगार्डिंग डिस्काउंट. सो यू आर गेटिंग कॉम्बो प्राइस GS plus optional up to 14% discount when you are targeting 3-year subscription. So guys, a very big option. Okay, so always you are getting discount up to 14%. Unacademy आपको GS और ऑप्शनल के कॉम्बो ऑप्शंस दे रही है. व्हाट टू डू? यूज कोड अजीत लाइव फॉर फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10%. माय डियर फ्रेंड्स, 21 दिसंबर से ऑसम कोर्स बैच कोर्सेज अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं. वी हैव लॉन्च बैच कोर्सेज फॉर दोज अपेयरिंग इन 21, फॉर दोज अपेयरिंग इन 22 एंड फॉर दोज अपेयरिंग इन 23. वेरी ऑसम टीम. मृणाल पटेल सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, माइसेल्फ अजीत तिवारी, Pradeep Nayak sir, Madhukar Kotove sir. What to do? Use code Ajit Live for 10% massive discount. And guys, for your proper mentoring. मेरे प्यारे दोस्तों, for 1 year, for those appearing in 22, we have launched Ultimate GS 1-year batch course. So again here, use code Ajit Live. Very awesome top educators are available for you guys. मेरे प्यारे दोस्तों, for those appearing in 23, again we have launched a batch course, again with the awesome team. What to do? Again, use code Ajit Live for your one-stop solution, proper dedication, proper determination, which are the important keys for the success. My dear friends, 6 months remaining for your prelims, which is going to be on 27 June for those appearing in 2021. जी हाँ, जितने लोग 2021 के एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए, उन लर्नर्स के लिए, उन दोस्तों के लिए गाइस, इस 6 मंथ को हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, कि कहीं आप भटके नहीं, आप ट्रैक पे हो. सो गाइस, वी हैव लॉन्च अ वेरी ऑसम कोर्स. आपको इस बात को समझना है, हाउ दिस फनलिंग, इन दिस प्रोसेस ऑफ मैसिव फनलिंग, what we are going to do, we are going to help you, we are going to provide you to the point content, proper guidance, and it is a very must join course. Vast syllabus, limited time, 20 plus subjects, 100 plus books, prelims exam, unpredictable pattern. इतना टाइम नहीं है कि 3 और 4 अटेम्प्ट दें और टाइम खराब करें. So guys, we are having number of options. Again, I'm repeating. So any batch you can join, and don't forget to use code Ajit Live for your one-stop solution for your Unacademy subscription and proper discount. मेरे प्यारे दोस्तों, for Hindi medium we are having Lux 21, for English medium we are having Expedition 21, for bilingual we are having Mission 2021. My dear friends, so must join series on plus courses. All these are to the point PDF available plus courses. मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने ड्रीम को पूरा करने का हमारे टीम के साथ. आप बिल्कुल इधर उधर ना सोचें, और अगर आपके पास प्लस है और आप आइकॉनिक करना चाहते हो गाइस, ताकि आपको एक पर्सनल कोच मिल जाए, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सीरीज, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप के पार्ट हो जाए आप, इन सब के लिए गाइस यू कैन अपग्रेड योर प्लस सब्सक्रिप्शन इनटू आइकॉनिक. माय फ्रेंड्स, फी हाइक होने वाली है. सो व्हाट टू डू? यूज कोड अजीत लाइव फॉर योर सब्सक्रिप्शन. हाउ टू टेक सब्सक्रिप्शन गाइस? जैसे आपके पास सब्सक्रिप्शन आएगा, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा. माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे आप. सो नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस आर अवेलेबल. Number of free special classes are available, while
enrolling for those classes, use code Ajit Live. और आप अगर आपने लिंक्स मिस कर दिया है गाइस, तो फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल t.me/Ajit Live. आपको माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपर सारे लिंक्स मिलेंगी. 100+ टॉप एजुकेटर्स. कई लर्नर्स को लगता है कि अगर आपने अजीत लाइव कोड यूज किया, सो इट इज नॉट ओनली फॉर माय प्रोग्राम. 100+ टॉप एजुकेटर क्लासेस कर सकते हो आप. For 12 months, fee is 49,500, 24 months 72,000, 36 month 90,000. लेकिन जैसे आपने कोड ऑफ डिस्काउंट अजीत लाइव यूज किया, डिस्काउंट ऑफ 10% और 12 मंथ की फी 44,550, 24 मंथ्स की 64,800, 36 मंथ की 81,000. मेरे प्यारे दोस्तों, आइकॉनिक इज वेरी ऑसम because you're getting personal coach, customized study planner, high intensity workshops, and for 12-month fee is 69,500, 24 month 1,07,000 and 36 month 1,41,000. लेकिन जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया गाइस, डिस्काउंट ऑफ 10% and for 12 month it is 62,550, 24 month 96,300 and 36 month 1,26,900. मेरे प्यारे दोस्तों, in all cases when your subscription is for 1 year, 2 year, 3 year, no cost EMI is available. With the help of credit cards, no cost EMI is available, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने अनअकैडमी के ज्योग्राफी ऑप्शनल प्लस कोर्सेज पर लॉन्च किया है. आई एम जस्ट हैव गिवन इंट्रो ऑफ क्लाइमेटोलॉजी. अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हो गाइस, सो मस्ट ज्वाइन सीरीज बिकॉज 100+ बुक्स आई हैव कंपाइल्ड, माय डियर फ्रेंड्स. फॉर 12 month fee is 27,500, 24 months 40,000 and 36 month 50,000. वेरी ऑसम. आजकल कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, सो यू कैन गो फॉर द कॉम्बो ऑफर. ऑप्शनल में चाहे जीएस में ऑनलाइन ऑन स्पॉट लाइव आपको प्रॉपर 24/7 पर्सनल गाइडेंस मिलती है गाइस व्हेन यू आर यूजिंग माय कोड अजीत लाइव. ओके, सो लेट्स रिवाइज सेगमेंट. सेशन लास्ट में करेंगे. बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछते रहूंगा. थोड़े थोड़े पढ़ाने के बाद आज की रिवाइज पैटर्न को मैंने आपके लिए ऐसे ही प्लान किया है. माय फ्रेंड्स, वी हैव डन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर, ऑसम सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर. अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 6, 7th, 8th, 9th already I have done geography NCERT on this channel. G.C. Leong, very awesome book on Let's Crack UPSC CSE. Environment series I have started from 21st of December on Unacademy UPSC, and from tomorrow you can join me at 10:30 p.m. 8 p.m. on Unacademy UPSC, 10:30 p.m. on Let's Crack UPSC CSE. And guys, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. आइए आज बहुत ही ऑसम झमाझम कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं. सो गाइस, जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन ऑन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. माय डियर फ्रेंड्स, आइए जरा सेशन को स्टार्ट करते हैं, बातों को समझते हैं. फाइन. मिनरल्स नाम लेते, मिनरल से पहले अगर मैं आपसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं और फिर मैं आपसे मिनरल रिसोर्सेज की बात करूंगा, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूंगा. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वी हैव कवर्ड अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वी हैव कवर्ड अबाउट वाटर रिसोर्सेज,
and now we are going to discuss about mineral resources. So my dear friends, any matter or energy derived from environment, that is nature, that is used by living things including human, is called as natural resource. आप क्या बोल रहे हो? Any matter or energy derived from the environment, nature, that is used by living things including human is called as natural resources. आप इस natural resources को on the basis of origin, on the basis of development of resources अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप इसे बांट सकते हो लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, प्लांट रिसोर्स, एनिमल, मिनरल, एनर्जी एंड सो ऑन. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, potential resource, actual resource. Potential means resources that are found in the region but not put to proper use. Resources तो हैं लेकिन proper use नहीं हो पाई हैं. बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, असम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, वास्ट पोटेंशियल ऑफ वाटर, huge scope for hydropower generation but yet to be fully exploited and utilized. एनर्जी में चर्चा करेंगे आपसे. On the basis of development, actual resource that have been surveyed and quantified depends on technology and cost involved. Reserve resource, portion that can be developed profitably with available technology. जैसे फॉर एग्जाम्पल, increase in the world price of metal iron makes it profitable to use even low grade ore, thus turning a resource into a reserve. तो आपसे बात हो रही थी आजकल प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, unscientific land use practices which are causing massive environmental problems और साथ साथ रिसोर्स डिप्लीशन. ठीक, तो आइए इन बातों को गाइस और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं. होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन. इतनी बेसिक इंट्रो मैंने जो आपको दिया था, इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. और ये आपको कुछ स्क्रीन पे मिनरल्स दिख रही हैं. अगर ये नाम आए तो आप बिल्कुल घबराओगे नहीं. कैल्साइट, गैलेना, जैस्पर, जिप्सम, डोलोमाइट, ऊलाइट, ठीक, कंक्रीशन, एम्बर, एगेट. बात करेंगे ये किनके मिनरल्स हैं. So my dear friends, we use different things in our daily life made from metals. और आप देखते हो number of items are there in your house made up of metals. Question is, आखिर ये metals आई कहां से. ठीक, where do these metals come from? आपने अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ा है, आपने सियाल के बारे में पढ़ा है, अपर क्रस्ट के बारे में पढ़ा है, लोअर क्रस्ट के बारे में पढ़ा है. आपको मालूम है बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट देयर लाइज अ जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच इज कॉल्ड एज कॉनरैड. याद आया. सो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक. ठीक, तो रॉक्स में ये एम्बेडेड है और फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस. समरी इज वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स. इन मिनरल से प्रॉपर मेटल्स की एक्सट्रैक्शन हो रही है आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. सो प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद दे आर ऑब्टेन.
That means minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything जो आप और हम यूज कर रहे हैं, एक टाइनी पिन से ए टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, आपकी कार, आपकी साइकिल, बाइसाइकिल, all these are made from minerals because these metals are obtained from them. अब डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप की मिनरल्स हैं, क्या ये मेटेलिक है, किसकी बात कर रहे हो, क्या ये नॉन मेटेलिक है, क्या ये एनर्जी है, किसकी चर्चा हो रही है. सो मिनरल इज अ ब्रॉड टर्म, डिफाइन करेंगे, समझेंगे अभी. सो वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड from these minerals, okay, after proper refinement, and thus minerals are an indispensable part of our life. So almost everything from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals, है ना. The railway lines and the tarmac, that is the paving of roads, our, ठीक, अगर उसकी बात करें, our implements, machineries too are made from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth, run on energy resources derived from the earth. ठीक, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है कि जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो उतने हम ग्रीन क्लीन एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा रिलाई करें. इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स. ताजुब हो रहा है, ठीक. इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इसके ब्रॉड कवरेज को देखोगे तो समझ जाओगे कि बात किसकी हो रही है. मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इतनी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ के डेवलपमेंट में, हमारी सेरेमनीज में, फेस्टिवल्स में, हर जगह अगर मिनरल्स यूज हो रहा है, हम जो फूड खा रहे हैं उसमें मिनरल्स है, भाई ये मिनरल्स है क्या, है ना. आप बोलते हो कि भाई इस वाले सब्जी में आयरन है, इस वाले में कैल्शियम है, इस मिल्क में कैल्शियम है, आप बता रहे हो, आप बता रहे हो भाई इस वाले फ्रूट में सोडियम है, ठीक. दैट मीन्स आप चर्चा कर रहे हो, आप बताने समझने का प्रयास कर रहे हो कि कहाँ पे फेरस, विटामिन B12, कोबाल्ट, कोबालमिन, किन सब्जियों में, फलों में कोबाल्ट है, फेरस मिनरल्स हैं, ठीक. सो जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in varied forms in nature. एक तरफ आपके पास हार्डेस्ट डायमंड है और दूसरी तरफ सॉफ्टेस्ट टॉर्क. So hardest to softest. Question is why they are so varied, है ना. रॉक्स के बारे में गाइस आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड एज मिनरल्स. आइए इन बातों को और देखते हैं. सी, ये आपको मिनरल्स की बनी हुई चीजें, ठीक. सो आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. सम रॉक्स, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन,
consist of a single mineral, but majority of the rocks consist of several minerals in varying proportions. Over 2000 minerals are identified, and out of these 2000, only a few are abundantly found in most of the rocks. इसमें से few ही available हैं, abundant हैं. क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? Yes or no? Let me know. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements, वो डिपेंड करेगा ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच मटेरियल फॉर्म्स. वो तय करेगा उसकी कलर, उसका हार्डनेस, उसका क्रिस्टल का फॉर्म, उसका लस्टर, उसकी डेंसिटी दैट अ पार्टिकुलर मिनरल पॉजेसेस. और जियोलॉजिस्ट ने इन्हीं फीचर्स को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया है टू क्लासिफाई मिनरल्स. आइए इन बातों को और क्लियर करते हैं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स. ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, मस्केवाइट, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, जिप्सम, कैल्शियम प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, सोडियम प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, ऑर्थोक्लेस फेल्सपार, हेलाइट. गाइस इसे आप एनसीईआरटी में मत ढूंढना. जस्ट दिस इमेजेस आर गिवन कि जब ये नाम आप सुनते हो या पढ़ते हो तो ये आपको विजुलाइज कैसा करना है. जस्ट फॉर दैट इट इज गिवन. माय डियर फ्रेंड्स, आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं. सी, सो मिनरल जियोलॉजिस्ट डिफाइन कर रहे हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर found in the varied form, or a particular mineral will be formed from certain combination. एक इनका certain combination होगा. ध्यान सुनिएगा, ठीक, of elements, or that depends upon physical and chemical conditions, जिसके अंतर्गत इनकी फॉर्मेशन हुई. फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, जिनके अंतर्गत इनकी फॉर्मेशन हुई. एंड दिस फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस दैट विल डिसाइड कलर्स, दैट विल डिसाइड हार्डनेस, दैट विल डिसाइड क्रिस्टल फॉर्म, that will decide luster, that will decide density. ये सब उन बातों को तय करेगा. My friends, so a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon physical and chemical conditions under which material forms. This in turn result in wide range of colors, hardness, crystal form, luster and density that a particular mineral possesses. And guys, geologists use these properties to classify the minerals. However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. आप उसे classify कर सकते हो. Question is कैसे? Have a look. आप डिवाइड कर दोगे मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स अभी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, याद करा दूंगा. मेटेलिक को आप ब्रॉडली डिवाइड करोगे. फेरस कंटेनिंग आयरन, आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट. नॉन फेरस कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट. प्रीसियस गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. दूसरी तरफ नॉन मेटेलिक
माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये आपको स्क्रीन पे नॉन मेटेलिक्स दिख रहे हैं। एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो गाइस, आप इन बातों को वन बाय वन क्लियरिटी के साथ देख रहे हो, ठीक। सो व्हाट इज द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ दिस मिनरल्स? आइए जरा इन बातों को समझें। वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड? आखिर ये मिनरल्स कहां मिल रही हैं? दिस मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ORES. What is ore? Ore is a term used to describe accumulation of any minerals mixed with other elements. तो कोई मिनरल अदर एलिमेंट के साथ मिक्स्ड है। गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ NCERT कि भाई अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो भी आपकी क्लियरिटी हो जाती है। सो गाइस, द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी, अगर मैं इसकी बात करूं, इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। सोचिए, अगर एक ह्यूज रीजन में अल्ट्रा ट्रेसेस में कोई मिनरल प्रेजेंट है, उसके ओर में, जिसको एक्सप्लॉइट करना, जिसको ऑब्टेन करना, जिसको एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियली वायबल नहीं है, कई बार टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी, कई बार वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, बट ऑब्वियस मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन, पर्याप्त हो टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड, वो तय करेगा, दैट विल डिटरमाइन relative ease with which mineral ores may be mined। भाई कैसे आप उनकी माइनिंग करने वाले हो। सी टाइप्स एंड अकरेंस ऑफ मिनरल्स। क्या मैंने आपको ब्रॉडली कहा? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ सम एनर्जी मिनरल्स। कुछ एनर्जी मिनरल्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ सम एनर्जी मिनरल्स। सो हैव अ लुक, मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट इन कमेंट सेक्शन एनर्जी मिनरल्स। आप बोल सकते हो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर मैं आपसे नॉन मेटेलिक बोलता तो माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर। अगर मैं आपसे नॉन फेरस बोलता तो कॉपर, लेड, बॉक्साइट। अगर मैं आपसे फेरस बोलता, आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। तो ये एग्जांपल्स आपके माइंड में आ रहा है ना। क्वेश्चन इज in which general form minerals generally occur in which form? आखिर किस फॉर्म में मौजूद है? ये कौन से रॉक्स में मिनरल्स अवेलेबल है? क्या ये इग्नियस रॉक्स में है? क्या ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेडिमेंट्री लेयर, सेडिमेंट्री रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इनके पास मिनरल्स होंगी? So the type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which minerals may be mined. This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main type of formation in which minerals occur. ये बड़ा important है कि कौन से main types में minerals available हैं। ये हमारा जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आइए इन बातों पे चर्चा करें वन बाय वन। सो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल
जो प्रेजेंट होंगी, दे आर फाउंड इन द क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट और जॉइंट। मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा, एक क्विक रिकैप करा रहा हूं कि इग्नियस रॉक इज द प्राइमरी रॉक, इज द पेरेंट रॉक, इज फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक if formation occurs below the crust. Beneath the surface it is intrusive igneous rock, and above the surface it is extrusive igneous rock. It is formed by cooling and solidification of magma. अगर सरफेस के नीचे अगर इसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हुई, गाइस मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी के सेशंस में एक एक बात क्लियरिटी से समझाया है। दे आर क्रिस्टलाइन, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल, फाइन, एंड इफ दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा अबव द सरफेस, they will form various types of extrusive landforms through volcanism, है ना? So they are found in, minerals are found in cracks, crevices, faults or joint. The smaller occurrences are called as vein, veins, and the larger one are called as lodes, lodes. What is vein? What is lode? Vein and lodes are having mineral, they are found in igneous rocks. In most cases they are formed when minerals in liquid or molten and gaseous forms are forced upward through cavities through the earth's surface. क्या गाइस आपको ये बात समझ में आ रही है? They cool and solidify as they rise. जैसे जैसे आप डिपेंड कर रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग तय करेगा कि साइज ऑफ क्रिस्टल्स क्या होंगी। अगर मैं मेजर मेटेलिक मिनरल्स की बात करूं, टिन की बात करूं, कॉपर की बात करूं, जिंक की बात करूं, लेड की बात करूं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। भाई क्या है वेन्स एंड लोड्स? Smaller occurrences are called as veins and larger are called as lodes. So my friends, have a look on screen. So ये आपको गोल्ड, आपको कॉपर, आपको आयरन, स्क्रीन पे चमकता हुआ गोल्ड, आयरन और कॉपर आपको दिख रहा है। They cool and solidify as they rise, and major metallic minerals are like tin, copper, zinc, lead are obtained from veins and lodes. In sedimentary rocks, a number of minerals occurs in beds or layers, परतों के फॉर्म में। Sedimentary rocks are stratified. They are formed by cementation, compaction, squeezing, lithification of loose sediments. They have been formed as a result of deposition, accumulation, and concentration in horizontal strata. Coal and some form of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. My dear friends, हमें इन बातों को और समझने की जरूरत है। Another group of sedimentary minerals जैसे कि gypsum, potash, salt and sodium salt, they are formed as a result of evaporation, mainly in the arid region, mainly in the dry region. तो अगर मैं कोल की बात करूं, some form of iron ore की चर्चा करूं, have been concentrated as a result of long period under coalification under great heat and pressure. आपने जब क्लास 11 की ज्योग्राफी में कराऊंगा और फिर जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे आप, तो चर्चा करेंगे कि पीरियड ऑफ कोल फॉर्मेशन कौन सा था। गाइस अब बिल्कुल परेशान मत होना, A to Z step by step all basic topics I am going to cover on this free platform for you guys.
But for your OSS one stop solution for awesome means writing concentration program and so on, but obvious it is available on plus or iconic batches. और ये मेरा आपसे दावा है कि कोई ज्योग्राफी, कोई एनवायरनमेंट, चाहे वो जीएस की बात करें चाहे ऑप्शनल की बात करें, जो आपको यहाँ प्लस या आइकॉनिक बैचेस में मिलना है, तो कहीं से कोई क्वालिटी कहीं से भी पढ़ के कोई आए, आप कहीं से गाइस पीछे नहीं रहने वाले हो, बिकॉज माई कोर्सेज आर OSS वन स्टॉप सोल्यूशन। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे 3-3 4-4 कोर्स कर चुके हैं, ये मैं उनकी फीडबैक दे रहा हूँ गाइस। बहुत से वैसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में 2.5 लाख 3 लाख में कोचिंगों का नाम नहीं लूंगा, ठीक, वाई टू डिफेम एनीवन, जमा करके पढ़ाई करी थी और अब उनके होश उड़े हैं जब वो क्लासेस मेरी कर रहे हैं और उनका BBK हो चुका था। BBK मीन्स बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम। आइए गाइस इस बात को और आगे समझते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट another group of sedimentary minerals includes gypsum, potash salt, sodium salt. कैसे बना? Formed as a result of evaporation, especially in arid region. My dear friends, another mode of formation includes decomposition of surface rocks, removal of soluble constituents. क्या छूट जाएगा? Leaving a residual mass of weathered material containing ores. और इसी तरीके से बॉक्साइट की फॉर्मेशन हुई। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। तो पूरा आपको बेसिक्स क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ रही हैं। एंड दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट। इसी को तो बोलते हैं आप प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या ऐसा कुछ नाम सुना था? ठीक। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। ठीक। और इस प्लेसर डिपॉजिट से गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर ऑब्टेन्ड। सुवर्ण रेखा रिवर, ऐसा कुछ नाम सुना है? फाइन। कितनी बार गाइस ऐसा भी होगा, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कितनी बार ऐसा भी होगा कि ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, but most of these are too widely diffused to be of economic significance. लेकिन अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करूं, मैग्नीशियम की बात करूं, ब्रोमीन की बात करूं, so common salt, magnesium, bromine are largely derived from ocean waters. The ocean beds too are rich in manganese nodules. क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? Yes or no, my dear friends, let me know. Listen very very carefully. Guys, आप मुझे ये बताओ, वो ध्यान सुनना, आप मुझे ये बताओ कि क्या इंडिया के सारे मिनरल्स नेशनलाइज हैं? क्या उनकी एक्सट्रैक्शन इंडिया के किसी भी पार्ट में ऐसा पॉसिबल है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी, क्या कोई आपके पास ऐसा केस है इंडिया में जहां पे आज भी ये पॉसिबल है? यस और नो, लेट मी नो। माय फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। एक टर्म आप यूज करते हो, अभी मैं उस पर आऊंगा, एंड बिफोर कमिंग ऑन दैट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आपको कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस दिख रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा कि इसमें से गोल्ड कौन सा है, और अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हाउ दिस ओशन वाटर कंटेन्स
vast quantity of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance. However, common salt, manganese, and bromine are largely derived from ocean water. The ocean beds too are rich in manganese nodule, my dear friends. So, guys, मैं आपसे चर्चा कर रहा था, एक टर्म यूज करते हैं रैट होल माइनिंग। बिल्कुल नाम से स्पष्ट क्लियर है, चूहे की बिल की तरह रैट होल माइनिंग। जाहिर सी बात बहुत साइंटिफिक नहीं है। इंडिया की मोस्ट ऑफ मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन is possible only after obtaining permission from the government. But in most of the tribal areas, ध्यान सुना, most of the tribal areas of northeastern part of country, minerals are owned by individuals, communities. ऐसा मेघालय में देखा गया है। In Meghalaya, large deposits of coal, iron ore, limestone, dolomite, ठीक, coal mining in Jowai, Jowai, Cherrapunji is done by family members. अब फैमिली मेंबर्स जोवाई में, चेरापूंजी में क्या कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग अ लॉन्ग नैरो टनल। बहुत साइंटिफिक नहीं है। एंड दिस लॉन्ग नैरो टनल, जैसे कि चूहे की बिल हो, इज कॉल्ड एज रैट होल माइनिंग। सो दिस इज टर्म्ड एज रैट होल माइनिंग, माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, अगर मैं इंडिया की बात करूं, so India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. Broadly speaking, अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं, पेनिनसुलर रॉक्स की बात करूं, contains most of reserves of coal, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals, है ना? Sedimentary rocks on the western and eastern flank of peninsula. Sedimentary rocks का नाम लेते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है? चर्ट, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, रॉक सॉल्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हो some of the famous and popular example of stratified sedimentary rocks having some fossil content. So guys, sedimentary rocks on western and eastern flank of peninsula in Gujarat and Assam have most of petroleum deposits. Rajasthan with the rock system of peninsula has रिजर्व ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। कई बार मैंने आपको फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल्स, ये सब मैंने आपको रिवाइज कराया है ना? क्या आपको एक सदर्न इंडिया में हिल जो सांड के कुबड़ की तरह, हम्प ऑफ ऑक्स की तरह दिखती है? आपके पास ऐसे भी पिक्स वेस्टर्न घाट में है जिसका फेस या जो फीचर वाइज रिजेंबल करती है टू दैट ऑफ फेस ऑफ ए हॉर्स। आपको गेस करना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक? बात करेंगे आगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन वन बाय वन। द वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया are almost devoid of economic minerals. These variations exist largely because of
difference in geological structures, processes and time involved in formation of minerals. So my dear friends, हमें इन बातों को और समझने की जरूरत है। अगर मैं कुछ मेजर मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आइए इनको देखते हैं वन बाय वन। द वास्ट लेवल प्लेन की बात मैं कर रहा था, नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स एंड दीज वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, processes and time involved in formation of minerals. My dear friends, now have a look on distribution of few major minerals in India. बात करेंगे आयरन ओर की, मैग्नीज की, कॉपर की, बात करेंगे आपसे माइका की, बॉक्साइट की एंड सो ऑन। So extraction of minerals in the ore, ease of extraction, closeness to the market, यही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन अफेक्टिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। भाई अगर हिमालय के पास रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स है, अब आप मुझे बताओ क्या वहां पे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन है? क्या आपके पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आज के डेट में कॉमर्शियली वायबल अवेलेबल है? नो। सो बट ऑब्वियस इट इज अफेक्टिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द रिजर्व। ये उसे काफी प्रभावित करने वाला है, कर भी रहा है। हमें इस बात को और समझने की जरूरत है। सो गाइस, दस टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज टू बी मेड। भाई नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? व्हेन दिस इज डन, अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले गाइस मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक फेयर आइडिया दूं। अगेन गाइस, नाउ आई हैव एंटर्ड इन एनसीईआरटी प्लस सेगमेंट। ठीक, आप अभी सेशन को सुन लें और अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। क्या असाइनमेंट दूंगा? सेशन देखने के बाद आप इंडिया के मैप में इस पार्ट को कवर करेंगे। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रीफ कॉम्पैक्ट डिस्कशन अबाउट मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। मैं आपसे इंडिया के मिनरल बेल्ट्स की चर्चा करने वाला हूं। ठीक, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनने वाले हो और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर करने वाले हो। अगर गाइस मैं ब्रॉडली बात करूं तो ब्रॉडली इंडिया को आप 7 मिनरल बेल्ट्स में बांट सकते हो। ब्रॉडली यू कैन कैटेगराइज एंटायर आवर कंट्री इन 7 मेजर मिनरल बेल्ट्स। क्या मुझे आप में से कोई इन 7 मेजर बेल्ट्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है? यस और नो, लेट मी नो। गाइस आपके पास दो ही ऑप्शन है, यस और नो, लेट मी नो। माय डियर फ्रेंड्स, सो फार 7 मेजर बेल्ट्स आर कंसर्न। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वेरी फेमस द छोटा नागपुर बेल्ट। इसके छोटे पे ना जाए, छोटा नागपुर बेल्ट। जब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की फिजियोग्राफी प्लस पे ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। तो क्वेश्चन इज, दिस बेल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से रीजन्स इसमें आ रहे हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसमें रीजन्स क्या क्या आ रहा है, आप क्या क्या समझें, इसमें मिनरल्स कौन कौन सी खास आपको मिल रही हैं और क्या कुछ खास इनके फीचर्स हैं, क्या कुछ खास इनके लक्षण हैं। हम इनकी चर्चा माय डियर फ्रेंड्स आपसे करने वाले हैं।
सो द छोटा नागपुर बेल्ट रीजन, अगर मैं रीजन की बात करूं, अब यही आपको मैप में ऑब्जर्व करना है गाइस। धनबाद, आप धनबाद के बारे में लोकेशन देखोगे, हजारीबाग, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, रांची, संथाल परगना, बड़ा ही फेमस बेल्ट है ये, संथाल परगना, सिंहभूम, ठीक, फिर केओंझर, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर, ये सब आपको लोकेट करना है। प्लस में मैंने बच्चों को सब याद करा रखा है। सुंदरगढ़, ये सब उड़ीसा में है, ठीक। बांकुरा, ये वेस्ट बंगाल में है। बांकुरा, बीरभूम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, all this in West Bengal. All this means बांकुरा से बात हो रही है, ठीक। सुंदरगढ़, संबलपुर, मयूरभंज, कोरापुट, केओंझर, दिस कटक इन उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड में है ना, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, रांची, दिस आर इन झारखंड। तो आखिर इनमें मिनरल्स कौन कौन से मिल रही हैं, जो इतना नाम मैंने आपको इस बेल्ट में लिख दिया। ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। कोल इज फाउंड, माइका इज फाउंड, मैग्नीज इज फाउंड, क्रोमाइट इज फाउंड, बॉक्साइट इज फाउंड, आयरन इज प्रेजेंट, यूरेनियम फॉस्फेट, कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड चाइना क्ले। चाइना के नाम सुन के गुस्सा नहीं करेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस रीजन के पास 100% ऑफ कायनाइट रिजर्व है। OMG, 100% ऑफ कायनाइट। अप्रॉक्स रिजर्व की बात हो रही, 93% ऑफ आयरन और 84% ऑफ कोल, 70% ऑफ क्रोमाइट। क्यों मैं तब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन की बात कर रहा था। मैप में छोटा नागपुर बेल्ट, धनबाद से लेकर पुरुलिया तक इस रीजन को आप लोकेट करोगे, सारे लोकेशंस को ऑब्जर्व करोगे और दिमाग में बैठा लोगे कि दिस रीजन इज वेरी रिच इन कोल, माइका, having 100% काइनाइट रिजर्व, 93% आयरन ओर रिजर्व, ठीक, 84% ऑफ कोल रिजर्व एंड 70% ऑफ क्रोमाइट रिजर्व। रिजर्व का होना एक बात, प्रोडक्शन का होना दूसरी बात। कई बार बच्चे पढ़ते कुछ और हैं, समझते कुछ और है। माय फ्रेंड्स, आइए बातों को और आगे बढ़ाते हैं। आएंगे हम सेकेंड इंपॉर्टेंट बेल्ट पे, जिसे आप कॉमनली पॉपुलरली द मिडलैंड बेल्ट बोलते हो। द मिडलैंड
बेल्ट। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहां क्या मिल रहा है? मैग्नीज और बॉक्साइट और माइका, कॉपर, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन। एक इंडिया का मैप आप ड्रॉ करके उसमें अच्छे से बता देंगे, लिग्नाइट, मार्बल एंड लाइमस्टोन, सबके बारे में चर्चा होगी। ठीक। अगर मिडलैंड के बाद अगर मैं सदर्न बेल्ट की बात करूं, द सदर्न बेल्ट, माय फ्रेंड्स, सदर्न बेल्ट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो गोल्ड, आयरन और क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, माइका, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। नाम सुन के घबराएंगे नहीं। ठीक। सो गाइस, इसके साथ साथ आपके पास आएगा वेस्टर्न बेल्ट। इन वेस्टर्न बेल्ट राजस्थान, गुजरात, इन द वेस्टर्न बेल्ट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, in this Rajasthan, Gujarat and Maharashtra, non-ferrous metals copper, lead, zinc, uranium, mica, manganese salt, asbestos, building stones, precious stones, natural gas, mineral oil। फिर इन सदर्न बेल्ट गोवा, कर्नाटका, केरला, आयरन ओर, जिरकन, मोनोजाइट सैंड, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, सोपस्टोन। फिर आते हो आप हिमालयन बेल्ट, टफ टू ऑब्टेन। इंडियन ओशन बेल्ट, दैट मीन्स अगर मैं इंडियन ओशन बेल्ट की बात करूं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आप उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन को ले रहे हो। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, seabed also contains high grade nodules of manganese, phosphate, barium, aluminium, silicon, iron, titanium, sodium, potassium, chromite, magnetite and ilmenite। तो ये आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। सो गाइस, अगर मैं एक समरी की बात करूं, सी एक बार नाम ले लूं, 7 मेजर बेल्ट्स। द इंडियन ओशन, जिसमें आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को ले रहे हो। हिमालयन बेल्ट, सदर्न साउथ वेस्टर्न बेल्ट गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्टर्न बेल्ट राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, सदर्न बेल्ट आंध्रा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, मिडलैंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड आंध्रा, एंड वेरी वेरी पॉपुलर छोटा नागपुर बेल्ट, जिसके पॉइंट्स मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया है। इट इज ऑन द स्क्रीन। माय फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर घबराहट हो रही है तो होनी भी चाहिए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे, अगर आप सेशन में मेरे साथ बने रहोगे, यू आर गोइंग टू मेमोराइज ईच एंड एवरी टॉपिक। जाहिर सी बात है,
इट इज नॉट न्यू फॉर यू गाइस, है ना। तो आप इन सारी बातों को वन बाय वन समझने वाले हो। फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आपने इन 7 मेजर बेल्स को कवर किया। ओके, अब बात करेंगे अबाउट फेरस मिनरल्स। नाउ आफ्टर दिस एनसीईआरटी प्लस मैं वापस एनसीईआरटी वाले सेगमेंट पे आ गया हूं। सो आइए आपसे बात करें इस एनसीईआरटी वाले सेगमेंट की। सो गाइस, फेरस मिनरल्स की बात करूं, account for about 3/4 of total values of production of metallic minerals, provide a strong base for development of metallurgical industries, है ना। India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demands. Question is, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि अगर मैं आपसे फेरस मिनरल्स का नाम ले रहा हूं तो आपके माइंड में कौन कौन से मिनरल्स आ रहे हैं। क्या आपके माइंड में आयरन ओर आ रहा है? गाइस, अगर मैं आयरन ओर का आपके सामने नाम ले रहा हूं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, very important for economy of a country, not found in pure form in the earth crust, found mixed with lime, magnesium, phosphorus, silica, sulfur and copper। अब ऐसा नहीं है कि आयरन प्योर फॉर्म में है ना। ये लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सिलिका, सल्फर, कॉपर के साथ मिक्स्ड है। इसके कई टाइप्स होंगी आयरन ओर की। आइए जरा इस पे गौर फरमाते हैं। बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड वी आर हैविंग abundant resource of iron ore. We are having good quality of iron ore. Question is, कौन कौन से टाइप्स हैं? हेमेटाइट नाम लिख दे रहा हूं मैं, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटीज, ठीक, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटीज, दैट मस्ट क्लियर। बात करेंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मैग्नेटाइट एक हो गया, फाइनेस्ट आयरन ओर, हाई कंटेंट ऑफ आयरन, है ना। इसमें आप 60 to 65%, मैक्सिमम अप टू 70% ऑफ आयरन इज प्रेजेंट। कई बार आप मैग्नेटाइट को बोलते हो ब्लैक ओर, इट इज कॉल्ड एज ब्लैक ओर, ठीक। हेमेटाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, also called as hematite, is also called as oxide of iron। यहां पे भी अप टू 60 to 70%, इन लो क्वालिटी 50 to 60%। आइए इन बातों को और समझते हैं वन बाय वन। हैव लुक ऑन स्क्रीन। सो एक्सीलेंट मैग्नेटाइट की बात हो रही है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज अवेलेबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, किसकी बात हो रही है। अब ये जो मैग्नेटाइट है, इसका जो ओर होगा, आइदर ओर इज इग्नियस, आइदर ओर इज इग्नियस और मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक। अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मेनली फाउंड इन धारवाड़ एंड कडप्पा सिस्टम ऑफ कर्नाटका, धारवाड़, शिमोगा, है ना, बेल्लारी ऑफ आंध्र प्रदेश, मैग्नेटाइट की बात कर रहा हूं, सलेम ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। और अगर मैं हेमेटाइट की चर्चा करूं, अगर मैग्नेटाइट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज हो रहा है, हेमेटाइट
ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर in terms of quantity used, ठीक, iron content 50 to 60%, मैक्सिमम अप टू 70%, ये मैसिव हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, लंपी और रेडियस और कोरल रेड इन कलर। अगर मैग्नेटाइट को आपने ब्लैक और कहा तो हेमेटाइट इज रेड और कोरल रेड इन कलर, ठीक। अगर मैं इसकी डिपॉजिट की बात करूं तो झारखंड की आयरन सीरीज, मयूरभंज ऑफ उड़ीसा, बैलाडीला दल्ली राजहारा ऑफ छत्तीसगढ़, एमपी, कर्नाटका, बाबा बुदान कुद्रेमुख। इसी बाबा बुदान की बात मैं कर रहा था कि सांड के कुबड़ की तरह दिखता है, हम्प ऑफ ऑक्स, एंड ऑल्सो फाउंड इन गोवा, महाराष्ट्र एंड आंध्रा। गाइस, आई एम मूविंग एनसीईआरटी प्लस। मैंने आपसे बात कही है, ये आपको आयरन और माइन दिख रहा है। अगर मैं लिमोनाइट की चर्चा करूं, येलोइश इन कलर, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इंफीरियर ओनली 35 to 50% ऑफ मेटल, दामोदा सीरीज ऑफ रानीगंज कोलफील्ड, मिर्जापुर ऑफ यूपी, आजकल बड़े मिर्जापुर चर्चा में है, गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड एंड कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल। अगर मैं साइड्राइट की चर्चा करूं गाइस, सो मैंने आपसे चर्चा करी हीमेटाइट, ठीक, हेमेटाइट और ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ऑक्रे। नाम लेते ही ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, दिमाग में आपके पास रेडिश और कोरल रेड कलर आ रहा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिमाग में स्पष्ट बैलाडीला, दल्ली राजहारा, मयूरभंज, ये सब क्षेत्र आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुद्रेमुख। और फिर अगर मैं आपसे ब्लैक और मैग्नेटाइट की बात करूं, मैग्नेटाइट की चर्चा करूं, तो आपके माइंड में धारवाड़, कडप्पा सिस्टम ऑफ कर्नाटका, ठीक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, बेल्लारी ऑफ आंध्रा, सलेम, तिरुचिरापल्ली ऑफ तमिलनाडु, ये सारे आ रहे हैं। और अगर मैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स, लिमोनाइट की चर्चा करूं, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके माइंड में इंफीरियर क्वालिटी ऑफ और 35 to 50% ऑफ आयरन मेटल, आयरन स्टोन शेल्स ऑफ दामोदा सीरीज ऑफ रानीगंज कोलफील्ड, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल, ऐसे नाम आपके माइंड में आ रहा है। और अगर मैं साइड्राइट की चर्चा करूं तो स्पष्ट आयरन कार्बोनेट आपके माइंड में आएगा। 10 to 40%, वेरी इंफीरियर क्वालिटी, सो नॉट इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। कई बार चूंकि कमर्शियली वायबल नहीं होती, सो आप इसे एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड्स, this was about types of iron ore. My dear friends, so now have a quick look on major iron ore belts of India. Odisha Jharkhand belt, high grade hematite ore is found in Badam Pahad mines, Mayurbhanj and Keonjhar district. Adjoining Singhbhum district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in Goa and Nova Mundi. क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले ही समझाया कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको लोकेशन सारी मैप में देखनी है। तब जब आगे मैं मूव करूंगा, ठीक, जब आगे मैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे आऊंगा, तो जब सारे कंसेप्ट्स को लिंक करूंगा, देन यू विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट,
lies in Chhattisgarh and Maharashtra. Very high grade hematites are found. Famous Baladila range hills of Bastar district of Chhattisgarh. ये आपको रीजन दिख रहा है इन द स्क्रीन. ठीक, 14 डिपोजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन. Best physical properties required for steel making. And iron ore from this mine is exported to Japan. आप जापान भेजते हो, साउथ कोरिया भेजते हो, फ्रॉम दिस विशाखापत्तनम पोर्ट. और फिर गाइस आपके पास आ रहा है. सो मैं आपको बता रहा था कि बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग आयरन ओर from this mine is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam port. Then Ballari, Chitradurga, Chikmagalur, Tumakuru belt in Karnataka has large reserve of iron ore. Kudramukh mines, Western Ghat of Karnataka, one of the largest in the world. Take the ore is transported here in the form of slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. हर रीजन की अपनी अपनी खास बात होगी. So Kudramukh deposits are very very famous and ore is transported as slurry through a pipeline near the port of Mangaluru. और फिर बात करेंगे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की. State of Goa, Ratnagiri district of Maharashtra, not very high quality ore, so they are exported through Marmagaon port. They are not of very high quality, yet they are efficiently exploited, and iron ore is exported through Marmagaon port. So my dear friends, आज मैं सेशन को यहीं पर स्टॉप करूंगा. In next session, we'll discuss about manganese, non-ferrous minerals, copper, bauxite, and so on. About non-metallic minerals, mica, rock minerals, limestone. We'll discuss about conservation of minerals, about the new mineral policy, about problem of mining industry. So all these important topics I will cover in the next session as a part of NCERT Plus. My dear friends, आप अपना बहुत ख्याल रखें. Guys, always be disciplined, regular, fine, and for your OSS one-stop solution, use code Ajit Live. और अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, लिंक इज t.me/Ajit Live, ताकि आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस, फ्री सेशंस आपको मिल पाए. See you guys today at 10:30 p.m. in very awesome free special classes in the series of 100 most important topics of environment and geography. God bless you all. Thanks for watching. वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें. Let's make it viral. Let's crack it. Bye bye. Thank you. See you tomorrow at same time, that is 7:15 p.m.